Success Mantra. We shape future. Good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu. Today is 29th of May 2024 and we'll start with the important event for this particular day. So today is 29th of May 2024. So what is one important event that took place on 29th of May? Today is International Day of United Nations Peacekeepers. So on 29th of May every year we observe International Day of United Nations Peacekeepers. So what is the International Day of United Nations Peacekeepers? तो United Nations की जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं उनको हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए, टू सेलिब्रेट द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, हम लोग 29th ऑफ मे को हर साल एवरी ईयर ऑन द 29th ऑफ मे वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स. नाउ मूविंग ऑन. So there is no important news headline on the first page. 31 killed as rain landslides wreak havoc in northeast. Not important for us. 6 lives lost as rain batters Kerala ahead of monsoon. So जो वहाँ पे केरला में मानसून के पहले जो बारिश हुई उस बारिश की वजह से 6 लोगों की डेथ हो गई. नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. मूविंग ऑन. Cyclone Remel, one of the longest lasting, says experts. So basically this particular cyclone Remel, which recently this particular cyclone Remel कहाँ पे था ये? वेस्ट बंगाल में. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग cyclone. So basically Remel become the longest cyclone which recently hit the shores of the West Bengal, has become the longest lasting cyclone. Now moving on. Supreme Court bench tells Kejriwal to move CGI for listing of his bail extension petition. So basically recently Arvind Kejriwal has filed a bail petition filed a particular petition in the Supreme Court, but basically this particular petition was for the extension of his bail, which was granted by the Supreme Court of India, and this particular bail period is coming to an end on 1st of June 2024. 1 जून 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट की थी उस बेल का टेन्योर खत्म हो जाएगा. अब उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने एक और पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में. उस पर्टिकुलर पिटिशन में ये बोला गया कि बेसिकली जो 1 तारीख को या 1 जून 2024 को जो अरविंद केजरीवाल की बेल का टेन्योर खत्म होने वाला, पीरियड खत्म होने वाला है, उससे पहले ही एक पिटिशन और फाइल करके बेसिकली जो बेल का पीरियड है उसे एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है. नाउ मूविंग ऑन. इस न्यूज़ में इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ अब जो संदेश खली का केस था, संदेश खली वाला जो इंसिडेंट हुआ था शेख शाहजहां के ऊपर, जो बहुत सारे सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल अब्यूजेस के चार्जेस लगे थे, रेप वगैरह के, उस पर्टिकुलर केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चार्जशीट फाइल कर दिया है. नाउ मूविंग ऑन. Now these are all political news. Court denies bail to ex-JNU student in 2022 Delhi riot case. This is not political news, but a Delhi court has rejected the bail application of Umar Khalid, who is in jail. अब इनकी जो ये bail application reject की गई वो क्यों की गई है? A Delhi court on Tuesday rejected the bail application of former JNU student Umar Khalid, who was arrested in a larger conspiracy case pertaining to the riots in Northeast Delhi in 2020. So basically Umar Khalid was arrested in a particular case which is related to the conspiracy
conspiracy pertaining to riots in Northeast Delhi 2020. Basically, in the year 2020, there was a riot in the northeastern part of the Delhi, and in that particular case, Umar Khalid has became the main accused. There was a link established between Umar Khalid and this particular riot. इस वजह से बेसिकली क्या किया है कि दिल्ली के कोर्ट ने उमर खालिद की जो बेल एप्लीकेशन थी उसे रिजेक्ट कर दिया कि जो इनका जो उमर खालिद है, इनका हाथ किस चीज़ में था, जो 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसमें उमर खालिद का हाथ था, इसलिए हम इनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं. नाउ मूविंग ऑन. Kejriwal said Bibhav Kumar remanded in a 3-day police custody. Tamil Nadu farmer protest against new dam construction at Mulla Periyar. Now, this is important for us. Members of various farmers organizations staged a protest at the Talakulam head post office in Madurai in Tamil Nadu on Tuesday, condemning the Kerala government's attempt to construct a new dam across Mulla Periyar. The protesters belong to various organizations including the Kumbam Valley Farmers Association and Mullai Periyar Vaigai Irrigation Farmers Association. As they tried to march to the income tax office in the city, the police denied permission for it. Protesting against this, the farmer burnt copies of the order issued by the Kerala government for the construction of a new dam across the river. So basically, what's happening? Kerala government is proposing to construct a new dam across the Mulla Periyar river. So due to this reason, there are farmers who started a protest against the same proposal. They don't want that there should be another dam. So that's why they were organizing a protest. Now moving on. As they tried to march to the income tax office in the city, the police denied permission for it. Protesting against this, the farmer burned copies of the order issued by the Kerala government for the construction of a new dam across the river. The farmers urged the Union Ministry of Environment and Forest to deny permissions for the new dam, the proposed construction of which went against the Supreme Court's assurance that the existing dam at the Mulla Periyar was safe. Further, they appealed to the Tamil Nadu government to file a case of contempt of court against the government for not adhering to the ऑर्डर ऑफ द टॉप कोर्ट. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर एक जजमेंट दिया था, उसमें एक बोला गया था कि जो मुल्ला पेरियार डैम है वो पूरी तरीके से सेफ है. नाउ अब जब ये कोर्ट का ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि मुल्ला पेरियार डैम है वो सेफ है, अब उस ऑर्डर के बावजूद भी क्या कर रहा है केरला गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू डैम अक्रॉस द मुल्ला पेरियार रिवर. अब उस रिवर के साइड बाय साइड पैरेलली हम लोग एक और डैम क्रिएट कर रहे हैं, बट जो एक एग्जिस्टिंग डैम था सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने ऑर्डर में कह दिया कि वो डैम सेफ था. सो बेसिकली इसीलिए जो वहाँ के फार्मर्स हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब ये जो क्या है, वो उन लोगों ने तमिलनाडु से भी रिक्वेस्ट किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी, कि वो लोग केरला के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में कि दिस इज नथिंग बट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. Why? Because the Supreme Court has already given or already stated in its order that Mulla Periyar Dam is safe. So if the Mulla Periyar Dam is safe, then why Kerala government is constructing another dam on the banks of Mulla Periyar river? This is the issue which this is the main issue. Now this is the main issue. अब इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ के अलावा और कुछ भी नहीं है. अब जो मुल्ला पेरियार डैम था उसको सेफ था, अब उसकी सेफ्टी पे जब कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप फिर दूसरा डैम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अगर आप दूसरा डैम क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं. अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे, देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? जब आप अगर सुप्रीम कोर्ट के, देन बेसिकली यू आर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बेसिकली आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं. आपने कोर्ट के किसी ऑर्डर को अगर मानने से मना कर दिया, दिस इज नथिंग बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. अब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट आपको पनिश भी कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए, ठीक है. अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बेसिक सा मतलब ये होता है कि आपको कुछ कहा था कोर्ट ने करने के लिए, आप वैसा नहीं कर रहे हैं. रिफ्यूजिंग टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ मूविंग ऑन. Trinamool BJP compete over Ram Navami rallies. Political news: Youth wing leader resigns from Sharad Pawar's NCP faction. Political news: New GM of East Coast Railway takes charge. Now this is one important appointment. You just have to remember the name of the appointee. Name of the appointee is Parmeshwar Fukwal. Parmeshwar Fukwal is the new GM of East Coast Railways. Now moving on.
11 babies rescued in Telangana, 11 held interstate gang busted police. Not important for us because this is a state centric news and this particular news has zero relevance in any examination. आप किसी भी एग्जाम को पैन इंडिया उठा करके देख लीजिए, आपको उस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. आप एक चीज़ और याद रखिए कि क्वेश्चंस हमारे बेसिकली लॉ से रिलेटेड होते हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, या अगर कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ये फायर इंसिडेंट जो हुआ है इससे एक एप्ट क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं किया जा सकता है. ठीक है ना. मूविंग ऑन. द हिंदू विंस won IFRA award for audience, won IFRA award for audience engagement. Made of Chennai, a brand campaign by The Hindu won in the best in audience engagement category at the WAN Infra Digital Media Awards worldwide in Denmark. So there was the award ceremony in Denmark. The award ceremony was named as WAN Infra 2024 Digital Media Awards worldwide. Now, in this particular at this particular award ceremony, The Hindu has been awarded with Best in Audience Engagement Award. Best in Audience Engagement Award. Now, moving on. A country's policy should be aimed at poor. This particular statement was given by P. Chidambaram. Another political news for us, not important for us. Now. Bond signed for rural services by MBBS graduates prior to July 2022 illegal. This particular statement was given by the Karnataka High Court that bonds that were signed for rural services by the MBBS graduates prior to July 2022 is illegal. Now, what is this particular news? So the news is around 440 MBBS graduates of 2020 are not required to undergo 1 year of compulsory rural services as per these bonds signed by them while joining the medical course through government quota seats in 2015. As the High Court of Karnataka had said, the law enacted in 2012 for mandatory rural services remained unenforced for 10 years. So basically क्या हुआ है कि 2022 के पहले जिन लोगों ने MBBS ग्रेजुएट्स ने एक बॉन्ड साइन किया था, कर्नाटका में एक रूल था कि जो भी MBBS ग्रेजुएट होगा उनको एक बॉन्ड साइन करना रहता था. उस बॉन्ड के साइन करने के बाद बेसिकली आपको मिनिमम कंपल्सरी 1 साल रूरल एरियाज में सर्विस या सर्व करना रहता था. नाउ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर केम इन 2012. अब ये जो ऑर्डर आया था कि आपको मिनिमम 1 साल सर्व करना ही होगा, ये ऑर्डर आया था 2012 में. अब 2012 में जब ऑर्डर आया ये, उसके 10 साल बाद तक इस ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं किया गया था. दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वॉज अनइन्फोर्स्ड. दैट्स वाई द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज क्लियरली स्टेटेड दैट जिन लोगों ने 2022 के पहले वो बॉन्ड साइन किया था, मिनिमम कंपल्सरी सर्विसेज का 1 साल की जो एग्रीमेंट साइन किया था, अब उन लोगों को वो बॉन्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं. इसका मेन रीजन क्या है कि क्यों बॉन्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जो पर्टिकुलर लॉ बनाया गया था उससे 10 साल से वो अनइन्फोर्स था. इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो MBBS ग्रेजुएट्स हैं जुलाई 2022 के पहले के, उन्हें मिनिमम 1 साल सर्व करने की जरूरत नहीं है. नाउ मूविंग ऑन. So this particular incident is related to the fire that take place in the Rajkot that took place at Rajkot. अब राजकोट में क्या हुआ था कि एक गेमिंग जोन में फायर लग गई थी. क्लोज टू 30 लोगों की जान उसमें चली गई थी. 30 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. बट उसके अलावा फिर इसमें जो गुजरात हाई कोर्ट है, उन्होंने इस पर्टिकुलर केस का सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर के जो आपकी बेसिकली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, राजकोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसको काफ़ी सारी फटकार भी लगाई कि इनके पास अगर किसी भी तरीके का कोई भी फायर कंप्लायंस ये सारी चीज़ें नहीं थी तो ये पिछले 2 साल से लोग फंक्शन कैसे कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ें थी. इसमें बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं? डिपार्टमेंटल फेलियर हो रही है. दिस इज नथिंग बट द डिपार्टमेंटल फेलियर. नाउ मूविंग ऑन. India offers $1 million aid to disaster hit Papua New Guinea. The government of India has granted $1 million as immediate assistance for Papua New Guinea, which has been hit by a devastating flood and landslide that had so far killed 2,000 people. So basically क्या हुआ है पापुआ न्यू गिनी में बेसिकली एक बहुत ही जो कहते हैं ना बहुत ही एग्रेसिव और डिवास्टेटिंग फ्लड और लैंडस्लाइड आया,
उस फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से क्या हुआ, पपुआ न्यू गिनी में क्लोज टू 2000 लोगों की जान चली गई है, 2000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी है। अब क्या हुआ है कि इंडिया बीइंग अ गुड कंट्री, हमने क्या किया, हमने पपुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। Now this particular page is dedicated to election news headlines। अब ये पूरा का पूरा पेज इलेक्शंस के लिए डेडिकेटेड है। अब हमें इसमें कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेसिक रीज़न क्या है कि ये जो पूरा का पूरा पेज ही है, बेसिकली ये क्या है, ये आपका पॉलिटिकल हेडलाइंस और पॉलिटिकल न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बेसिकली आपको ये हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं। वी विल स्किप दिस पर्टिकुलर पेज। इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कोई भी रेलेवेंस नहीं है, इसीलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन। EC orders suspension of Special Secretary to Odisha Chief Minister. Close electoral contest on the cards in Odisha 6 Lok Sabha constituencies. Not important for us. Battle for the heart of the eternal city. Political news now. Major Radhika Sen to receive UN Gender Advocacy Award. Now, Major Radhika Sen, an Indian woman peacekeeper for the UN, will be honored with the prestigious Military Gender Advocate Award, with UN Secretary General Antonio Guterres describing her as a true leader and role model. Major Sen, who served with the UNO Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo as the engagement platoon commander with the Indian Rapid Deployment Battalion, will receive the prestigious 2023 UN Military Gender Advocate of the Year Award from Mr. Guterres during a ceremony at the World Body's headquarters on May 30th, the International Day of UN Peacekeepers. So basically अब हमें एक चीज़ और देखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो इंडिया की एक मेजर राधिका सेन, इन्हें यूएन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड मिलने वाला है, 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिल रहा है, मेजर राधिका सेन को। मेजर राधिका सेन कौन है, बेसिकली मेजर राधिका सेन जो आपके हैं ये क्या है, इन्होंने बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं उसमें इन्होंने भी पार्ट लिया था, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने कहाँ पे सर्व किया था, इन्होंने सर्व किया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की तरफ से गई थी वहाँ पे। अब मेजर राधिका सेन को अब क्या अवार्ड मिल रहा है, मेजर राधिका सेन को मिल रहा है 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब ये अवार्ड इनको देगा कौन, ये पर्टिकुलर अवार्ड इनको देगा कौन, ये पर्टिकुलर अवार्ड इन्हें देंगे मिस्टर अंटोनियो गटरेस, ठीक है ना। मूविंग ऑन। नॉट इम्पॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन रिलीजेस एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेज 6, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले जो पहले 5 फेज हुए थे इलेक्शन के, फर्स्ट 5 फेजेस, उनका एग्जैक्ट डेटा रिलीज़ किया था। अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि जो 6 फेज के इलेक्शंस हुए थे उनका भी कंप्लीट डेटा रिलीज कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन। The Constitution, a surprise entrant in pole battlefield. Now, basically Constitution का जो कैसे, मतलब Constitution ने एक सरप्राइज एंट्री ली है, जो अभी हमारे पोल्स चल रहे हैं पूरे पैन इंडिया में, इसमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक सरप्राइज एंट्री ली है, उसको हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास कवर करने के लिए नहीं है, जैसा कि परसों के एक जो डे बिफोर यस्टरडे का आर्टिकल आया था, रिलेटेड किस चीज़ से था, वो रशिया ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग न्यूक्लियर वॉर के लिए भी, अगर हमारे कंट्री की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी की बात आएगी तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में हम लोग को क्लोज टू 15 to 18 मिनट्स लग गए थे। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक उतना रिलेवेंट नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने सारे फैक्ट्स इसमें नहीं है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को जल्द से जल्द और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे। नाउ मूविंग ऑन। Why has the Constitution emerged as an explicit site of contestation in this election? The approximate trigger was the BJP's declaration of 400 par, and remarks by some leaders early in the campaign
that total electoral domination in this election would empower the BJP to change the constitution. Opposition leaders were quick to mobilize. BSP leader Mayawati's nephew and former BSP national coordinator Akash Anand gave rousing speeches. Indeed, days after Ms. Mayawati sacked Akash Anand, the Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav took to Twitter to publicly remark that even traditional voters of the BSP are voting for the India bloc to save the constitution. The Congress Rahul Gandhi has taken to symbolically waving a copy of constitution at his campaign release. The opposition has declared this election to be battle for saving the constitution and it is having a resonance on the ground. नाउ बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले एक ये स्टेटमेंट आया था, इसको इंटरप्रेट किया गया था रूलिंग पार्टी की तरफ से कि रूलिंग पार्टी बेसिकली क्या करना चाहती है, रूलिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को ही मॉडिफाई करना चाहती है, चेंज करना चाहती है। जब बेसिकली ये स्टेटमेंट दे दिया गया या ये स्टेटमेंट दे दिया रूलिंग पार्टी ने, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में थी, बेसिकली जो ऑपोजिशन का इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक ने पूरी तरीके से स्टेटमेंट को टारगेट किया और ये बोलने की कोशिश या ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की हमारे कंट्री के जो वोटर्स हैं कि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है, अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है, या बेसिकली जो स्टेटमेंट दिया था बीजेपी और उनके लीडर्स ने कि अब की बार 400 पार। सो इसका रेफरेंस कांग्रेस ने ऐसे समझाया लोगों को कि अगर बीजेपी को 400 प्लस या 400 प्लस सीट्स मिलेंगी तो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देगी। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज दिस पर्टिकुलर आइडिया वाज रोब्ड इन द माइंड ऑफ कॉमन मैन और लेमैन्स। जो इंडियंस के दिमाग में आइडिया को रोपिन किया गया, किसने किया? ये कांग्रेस ने, और जो इंडिया ब्लॉक है उसने क्या किया, अगर बीजेपी इफ बीजेपी विल गेट मोर देन 400 सीट्स तो बीजेपी बेसिकली क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी। नाउ Scholars make an important distinction between constitutional principles and ordinary laws. Constitutional principles frame fundamental rights and are of higher order that every citizen must obey. Ordinary laws, on the other hand, are rules often guided by constitutional principles that govern society. Ordinary laws in India regularly police our spaces. They discriminate and are used coercively by the state in ways that undermine freedoms and disempower citizens. So basically क्या बोला गया, एक चीज़ और बोली गई कि constitutional values जो होती हैं they are much above the नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ऊपर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊपर होती हैं जो हमारी नॉर्मल स्टैट्यूटरी वैल्यूज़ होती हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्निंग प्रिंसिपल्स होते हैं वही हमारे ग्रैंड नॉर्म है इस कंट्री का। इसीलिए बेसिकली इसमें एक चीज़ और बोली गई, दे डिस्क्रिमिनेट एंड आर यूज्ड कोर्सिवली बाय द स्टेट इन द वेज दैट अंडरमाइन फ्रीडम्स एंड डिसएम्पावर सिटीजंस। अब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में और अदर स्टैट्यूट्स में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अब ये डिफरेंस इतना भी माइन्यूट नहीं है, बट हाँ इसमें एक चीज़ बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है बेसिकली वो आपको राइट्स देता है, आपके राइट्स के बारे में वो बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट योर राइट्स एंड इट टॉक्स अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू शुड गेट इन अ कंट्री। बट बेसिकली जो आपके अलग अलग स्पेसिफिक लॉज होते हैं, दैट दोज राइट्स टेक अवे, दोज पर्टिकुलर एक्ट्स टेक अवे योर राइट्स, और वो क्या करते हैं बेसिकली आपके साथ में आपको डिसएम्पावर करते हैं। दोज स्पेसिफिक एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स डिसएम्पावर। अब डिसएम्पावर कैसे करते हैं, बेसिकली आपके राइट्स को कर्टेल करते हैं। जैसे किसी भी पर्टिकुलर लॉ में कोई पनिशमेंट दी गई है किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली क्या करती हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को या आपके राइट्स को कर्टेल करती है। बट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, आपको सारे के सारे राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन देने की बात करता है। सो इसीलिए बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं दे आर मच स्ट्रॉन्गर। नाउ अब जो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो अलग अलग जगह पे जो पॉलिटिकल लीडर्स ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट किया, पूरा आर्टिकल सिर्फ उसी चीज़ के बारे में डील कर रहा है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या कहती हैं, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, नाउ अब हमें और इंपॉर्टेंट इसमें देखनी होगी कि जो किसी भी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं, अगर किसी कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन कर रही है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं वो सुप्रीम होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से सुप्रीम कुछ भी नहीं है। जैसे इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया, अब बेसिकली जो पीपल ऑफ इंडिया के पास जो ये अल्टीमेट पावर दी गई है कहाँ पे दिया गया है, प्रीएम्बल में दिया गया, और प्रीएम्बल किस चीज़ का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो हमें बेसिक एनालॉजी यही ड्रॉ करनी होगी कि जो सारी की सारी पावर्स राइट्स आते हैं हम लोग के पास, वो कहाँ से आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर थिंग इन अ डेमोक्रेसी। अब बेसिक इंटरप्रिटेशन ये दिया गया कि हम नहीं, जो बेसिकली रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसका जो अलायंस है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, बेसिकली वो लोग 400 पार का जो उन लोगों ने नारा या स्लोगन दिया है, वो स्लोगन बेसिकली इसलिए दिया गया है टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग ये बताइए, आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ चेंज करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अंडरमाइन करने की भी बात हो रही है। तो यही सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। अब बेसिकली जो लास्ट
जो इलेक्शन का लास्ट फेज था या जो मिडल फेज था, सेकंड थर्ड फेज था, उसमें ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ तो मतलब जब आएगी ना, जब वोटिंग की वोट्स की काउंटिंग होगी, तब ये डेटा सामने आ पाएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया था बीजेपी ने, इसको बेसिकली जो अलग पार्टी से उन्होंने कैसे इंटरप्रेट करके नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल वोटर्स को कैसे कन्वे किया। नाउ मूविंग ऑन। Now, still no sign of the language of the equity and inclusion. The general election 2024 is almost nearing its end. Yet, when the Election Commission of India made the announcement for the election in March, the long video televised and propagated on social media stood out for the one detail: the absence of sign language interpreters. This is a small but significant example of the ways in which everyday life in India exclude deaf and hard of hearing citizens. India's push for equity in education, health care and India's push for equity in education, healthcare and rights cannot succeed without dismantling ableist barriers that exclude DHH people. DHH people कौन से होते हैं? Deaf and hard of hearing. Consider the National Program for Prevention and Control of Deafness to prevent and treat hearing impairment and provide medical rehabilitation. While it is well structured, it does not focus on the quality of light. It discusses theoretical aspects of screening procedures and hearing aid prescription, but does not mention the Indian Sign Language, which is an integral form of deaf communication. The Social Justice Ministry set up ISL Research and Training Center in 2015 officially, but ISL is still not recognized as an official language. Now, अब बेसिकली जो लोग बोल नहीं पाते और जो लोग सुन नहीं पाते, उनकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ कितनी हार्ड होती है हम सबको पता है, बट उन सब चीज़ों के बावजूद भी हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं रही है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बट इंडिया में जैसे बेसिकली साइन लैंग्वेज को लेकर के बात करें, इंडिया में अब इंडिया की खुद की एक इंडियन साइन लैंग्वेज है जो एक डेफ कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है, बट ISL इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने डेफ जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते, हमने उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज एक क्रिएट की, बट हमने इंडियन साइन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। सो इसका मतलब क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या हुई कि हमने इंडियन साइन लैंग्वेज क्रिएट की, जो डेफ जो लोग सुन नहीं सकते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते, उनके लिए हमने एक इंडियन साइन लैंग्वेज क्रिएट की, बट हमें उसे ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? हमें एक लैंग्वेज क्रिएट करने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब हमने उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस ही नहीं दिया। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। डिस्पाइट द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडिंग द स्टैंडर्डाइज टीचिंग ऑफ ISL अक्रॉस स्कूल्स, इट्स यूज इन एजुकेशन सिस्टम रिमेन्स स्पार्स इवन इन स्कूल्स फॉर द डेफ। सो बेसिकली ISL लैंग्वेज का जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, बट क्या हुआ है कि हमारे स्कूल में या इंडिया के जो स्कूलिंग सिस्टम में जो बेसिकली स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए स्कूल होते हैं, वहाँ पे भी इस लैंग्वेज को भी हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ नहीं कर रहे हैं। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टिल फोकसेज ऑन ओरलिज्म, वेयर डेफ पीपल आर टॉट टू यूज देयर वॉइसेज एंड लिप रीड इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर हैंड्स टू कम्युनिकेट। सो बेसिकली इंडिया में अभी जो एक पॉपुलर कल्चर है, पॉपुलर पेडागोगी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरलिज्म। व्हाट इज ओरलिज्म? ओरलिज्म इज बेसिकली वेयर डेफ पीपल आर टॉट टू यूज देयर वॉइसेज एंड लिप रीड। सो बेसिकली जो लोग टू यूज़ देयर वॉइसेस एंड लिप रीड, सो बेसिकली जो लोग सुन नहीं सकते उनको क्या बोला गया कि आप अपनी वॉइस का यूज़ करिए और दूसरों के होंठ पढ़ने की कोशिश करिए, लिप रीड करने की कोशिश करिए। ये एक तरीका बताया गया उन्हें। अब बेसिकली हमने क्या किया कि उन्हें अपने लिप्स को और उनको क्या कहा कि अपनी वॉइस को यूज़ करिए। दिस इज़ ओरलिज्म ना। अब हम लोग क्या कर सकते थे कि हम लोग अगर साइन लैंग्वेज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते, सो हम लोग बेसिकली उन्हें हैंड मूवमेंट्स के थ्रू बातचीत करना सिखा सकते थे। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ साइन लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, बट इंडिया में साइन लैंग्वेज का कल्चर या अभी ये लैंग्वेज इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, इसीलिए इंडिया में क्या अभी ओरलिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और जो बेसिकली जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, इनका डे टू डे लाइफ पे इन नॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से कितनी इस पे इनका कितना असर पड़ता है, कितना वाइडली इम्पैक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डील की गई हैं। बेसिकली हमें एक चीज़ एक्नॉलेज करनी होगी कि जो ये लोग बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं, ये लोग, दीज पीपल आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ये भी हमारे सोसाइटी के उतने ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जितना हम और आप हैं, ठीक है। बट आप लोग फिर ये समझिए कि इनको बातचीत करने के लिए इनके लिए एक दूसरा ही तरीका है, साइन लैंग्वेज का, ठीक है। अब अभी तक इंडिया में साइन लैंग्वेज हमने खुद की क्रिएट नहीं की थी। अब जब हमने अपनी एक खुद की साइन लैंग्वेज क्रिएट भी कर ली, उसके बाद हमने उसे भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। दैट मीन्स इट इज़ अ टूथलेस वेपन। टूथलेस वेपन है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है,
ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इंडिया में उसके बाद बहुत सी ट्रेडिशनल पेडागॉगी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल पेडागॉगी क्या है? ओरलिज्म। ओरलिज्म में बेसिकली आपको क्या बताया जाता है? यूज़ योर वॉइस एंड लिप्स। आपको लिप रीड करके और आवाज़ से अपनी बेसिकली आपको कम्युनिकेट करना है। अब अगर हम उन्हें इंडियन साइन लैंग्वेज में के थ्रू अगर हम लोग उनको हैंड मूवमेंट के थ्रू बात करना सिखा दें तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। ये पर्टिकुलरली अब जो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक आर्टिकल था इन्हीं सारी चीज़ों की बात करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, the question of Palestine's UN membership. Now, few countries in the world has recognized or acknowledged the statehood of Palestine. Israel's war on Gaza has raised several ethical, political, and diplomatic questions. One diplomatic development that has attracted a lot of interest is Palestine's renewed application for member of UN. Ironically, its quest is stuck at the UNSC due Ironically, its quest is stuck at the UN Security Council mainly due to the geopolitical calculation of the US, which argued that membership should follow and not precede a negotiated solution to the long-standing conflict. This is not the first time that Palestine has attempted to obtain UN membership. In 2011 too, its request was opposed by the veto bearing US in the UNSC. Since then, Palestine enjoys only non-member observer status. So basically अभी क्या हुआ है कि पैलेस्टीन ने यूएन की मेंबरशिप के लिए फिर से अप्लाई किया है। अब बेसिकली जो ये एप्लीकेशन गया है वापस से यूएन की मेंबरशिप पाने के लिए, यूएन का मेंबर बनने के लिए। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का अभी अपोज किसने किया? इसको किसने अपोज किया? यूएस ने अपोज किया। और ये जो इनकी एप्लीकेशन है बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी है। अब यूएस ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अपोज किया 2011 में। इसके पहले 2024 से पहले 2011 में पैलेस्टीन ने एक बार और ट्राई किया था कि उसे यूएन में मेंबरशिप, यूएन की मेंबरशिप मिल सके, बट उस टाइम पे भी यूएस ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल का, इस पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट था। तब से लेकर के अब तक बेसिकली नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस एंजॉय करता है पैलेस्टीन। नाउ after the UNSC's failed to agree on Palestine's request because of the lone veto cast by the US in its capacity as a permanent member, the UNGA stepped in to voice support to the Palestinian application. So basically US ने क्या किया? US ने अपने वीटो का यूज़ कर लिया, इसी वजह से जो उनकी एप्लीकेशन थी वो डिसॉल्व हो गई। Now moving on May 10 the UNGA overwhelmingly adopted a resolution affirming Palestine's eligibility to assume full membership in the UN. It also urges the UNSC to favorably consider Palestine's request. सो बेसिकली क्या हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले यूएनजीए में क्या हुआ था कि एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। उस रेजोल्यूशन के अडॉप्ट होने के बाद ये बोला गया कि पैलेस्टीन इज टोटली एलिजिबल टू अज्यूम द फुल मेंबरशिप ऑफ द यूएन। अब उसके लिए फिर क्या बोला गया कि फिर यूएनजीए ने यूएनएससी से एक रिक्वेस्ट भी किया कि आप लोग पैलेस्टीन की जो स्टेटहुड की और जो ये यूएन का मेंबर बनने की जो रिक्वेस्ट है इसको आप लोग थोड़ा सा फेवरेबली कंसीडर करेंगे, मतलब आप लोग थोड़ा सा लीनियंट रहेंगे। ये सारी चीज़ें थी। अब बेसिकली इसमें अब अगर हम देखें तो क्या जर्नी रही थी पैलेस्टीन की, क्या क्या उसको हर्डल्स देखने पड़े, इंडिया का क्या अप्रोच है, तो ये सारी चीज़ें इसमें। इसके अलावा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें कुछ हमें इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, ठीक है। नाउ अब ये देखिए फिर फायर सेफ्टी रेगुलेशन वाली चीज़ पे हम आ जाते हैं। जो राजकोट में फायर लगी गेमिंग जोन में, उस गेमिंग जोन में उस फायर के बाद बेसिकली क्या हुआ कि अब जब उस फायर के बाद पता चला कि बहुत सारी तरीके की जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ थी उन्हें हमने कंप्लीट नहीं किया था, या उन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ को ओवरलुक किया गया था। इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से क्या हुआ था कि वो आग लगी थी, उस आग में 27 से 30 लोग मर गए थे। अब चीज़ एक ये ज़रूरी है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये नज़र आ रही है कि ये जो डिपार्टमेंट और जो अथॉरिटीज़ रहती हैं जो इन सारे इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, ये किस चीज़ का वेट करती हैं कि जब आग लगेगी 30 लोग मर जाएंगे और हमें कोर्ट में बुलाया जाएगा तब हम जाएंगे अपना काम करने, तब हमें याद आएगा कि हमारा ये काम था, जब हमसे कोर्ट कहेगा कि आपने ये काम नहीं किया। सो इंडिया में अभी तक ऐसा ही सिस्टम चल रहा था और इसी वजह से क्या हुआ कि हर दिन कोई नया इंसान या कोई नई अथॉरिटी इसका विक्टिम बनती है। जैसे कि गुजरात में कौन विक्टिम बना? वो 27 लोग जो गेम खेलने गए थे। दिल्ली में कौन विक्टिम बना? 2 से लेकर के 12 दिन के बच्चे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ठीक है। तो इंसिडेंट सेम हो रहे हैं, इंसिडेंट्स की हैपनिंग जो वो सेम है, बट विक्टिम जो है वो नहीं, मतलब विक्टिम बस बदल रहे हैं, बट और जो आइडिया है वो सेम रह रहा है। जगह बदल रही है, गुजरात में हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है, कभी लखनऊ में हो रहा है, कभी मुंबई में हो रहा है, बट एक भी डिपार्टमेंट ने, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक, अगर सारी प्रोसीजरल कंप्लायंस, एक जगह पे कोई इवेंट हुआ, मान लीजिए गुजरात में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट में 27 लोग मर गए। अब पैन इंडिया अगर ऐसा कोई सिमिलर एक्सीडेंट होता है, उसमें अगर किसी की डेथ होती है, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बस इतना है कि हमने क्या सीखा,
अब ऐसा तो है नहीं कि राजकोट में अगर आग लगी है तो सिर्फ राजकोट के लोग ही उससे सीखेंगे। ये पर्टिकुलरली इनसे जो एक्सीडेंट हुआ है पूरे इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है, समहाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द होल ऑफ इंडिया। सो बेसिकली हम लोग बस वेट करते हैं कि जब कोई इंसिडेंट होगा कोर्ट हमसे बोलेगा तब हम करेंगे। अगर कोर्ट के बोलने से पहले ये पर्टिकुलर एक्शन ले लिए गए होते तो क्या होता, 27-30 लोग जो मर गए उनकी जान बच सकती थी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज जस्ट अ बंच ऑफ फिलोसफी, बट फिलोसफी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सोसाइटी है आपकी वो प्रिंसिपल्स पे ही रन करती है। नाउ मूविंग ऑन। China's flagship economic cooperation program is bouncing back after a lull during the global pandemic, with Africa a primary focus according to Reuters analyzing of lending, investment and trade data. Chinese leaders have been citing the billions of dollars committed to new construction projects and record two-way trade as evidence of their commitment to assist with the continent's modernization and foster win-win cooperation. So basically China क्या कर रहा है कि China बहुत hefty investment कर रहा है साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। क्यों? बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो बेसिकली वो बहुत मिनरली बहुत रिच है बट फाइनेंशियली और सोशली बहुत बैकवर्ड है। सो बेसिकली चाइना ये सारा जो हेफ्टी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बेसिकली क्या बोल रहा है, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। क्यों? हमें आपकी कंट्री से कुछ मिनरल्स मिलेंगे बट आपकी कंट्री का भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वरना आपकी कंट्री कितनी बैकवर्ड है। सो साउथ अफ्रीका के लिए इसलिए पर्टिकुलरली ये सिचुएशन विन विन है कि उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि उनके पास जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको एग्जैक्ट प्राइस पे, एक आइडियल प्राइस पे उनका डील कर सकें, ट्रेडिंग कर सकें। सो इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को उसने क्या बोला, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। हमें हमारे पैसे का रिटर्न मिलेगा और आपकी कंट्री का और आपके कॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ है कि कोविड के बाद से कैसे चीज़ें स्लो डाउन हुई थी, अब जाकर के वापस चीज़ों ने पेस पकड़ा है, तो इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नाउ मूविंग ऑन। अब एप्पल का अब चाइना में सेल 52% बढ़ गया, नॉट इम्पॉर्टेंट। पाकिस्तान वॉयलेटेड 1999 एग्रीमेंट साइन विद इंडिया, सेड नवाज शरीफ। तो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट। Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif on Tuesday admitted that Islamabad had violated an agreement with India signed by him and then Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 1999 in a reference to the Kargil misadventure by General Pervez Musharraf. Mr. Sharif was speaking at a meet of the PML and General Council. So basically क्या बोला गया था कि 1999 में जो कारगिल में मिस एडवेंचर हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ की वजह से, दैट वाज अ वायलेशन of an agreement which was signed between India and Pakistan. Now, अब रफ़ा में एक फ्रेश स्ट्राइक हुआ, उस फ्रेश स्ट्राइक में ऑलमोस्ट 37 से 40 लोगों की जान चली गई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल आउटरेज हो रहा है इसराइल के इन एक्शंस का, ग्लोबल एजिटेशन हो रहा है, ग्लोबल प्रोटेस्ट, ग्लोबली प्रोटेस्ट दिख रहा है इसराइल के इस पर्टिकुलर एक्शन में, जहाँ पे उन्होंने रफ़ा में एक सिविलियन सोसाइटीज़ में, माने एक सिविल सोसाइटी जहाँ पे बस सिर्फ नॉर्मल सिविलियंस रह रहे थे, वहाँ पे एक बॉम्ब अटैक किया। उस बॉम्ब अटैक में क्या हुआ, एयर स्ट्राइक हुई। उस एयर स्ट्राइक में 37 से 40 लोगों की जान चली गई। अब इस पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक के बाद पूरा वर्ल्ड इस पर्टिकुलर एक्शन को कंडेम कर रहा है, बट अगेन फ़ायदा क्या है? ठीक है, अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स सेम, फ़ायदा क्या है? ठीक है, जब एक्शंस चेंज ही नहीं हो रहे हैं, इजराइल ने सिर्फ सॉरी बोला है कि विल लुक इनटू इट कि ये कैसे हो गया एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। योर सॉरी कॉस्ट द लाइफ ऑफ 37 पीपल इन द गाजा, इन रफ़ा। तो बेसिकली आपके सॉरी का फिर मतलब क्या, जब आपके सॉरी बोलने के बावजूद उन 37 लोगों की जान तो नहीं वापस आने वाली है ना। और पूरा वर्ल्ड वैसे भी आपसे कह ही रहा है कि रफ़ा और गाज़ा में रुक जाइए, आप रुक जाइए, बट आप चले जा रहे हैं। तो ठीक है, ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन रिकॉग्नाइजेस पैलेस्टीनियन स्टेट। सो बेसिकली आप ना आज के न्यूज़पेपर में अगर जितनी भी चीज़ें हैं इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो एक यही चीज़ हमें समझ में आती है, एक सिंपल सी चीज़ हमें ये समझ में आती है कि देखिए आपके साथ जो गलत हो रहा है वो गलत है, इसे पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज कर रहा है। बट अगर आप किसी और के साथ गलत करेंगे तो उससे भी पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज करेगा। हमस मिलिटेंट ने अटैक किया इजराइल पे, आपने उसके रिटेलिएशन में, उसके एजिटेशन में आपने बहुत सारी चीज़ें की, दैट इज़ ऑल गुड एंड फाइन। क्लोज टू कितना 8-9 महीने होने को आ रहे हैं, बट फिर भी चीज़ें अभी तक कोई भी एक एमिकेबल सोल्यूशन नहीं मिला है।
दो ऑब्जेक्टिव थे इसराइल के इस पर्टिकुलर वॉर के स्टार्ट होने से पहले। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम हमास मिलिटेंट्स को ख़त्म करेंगे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था बेसिकली कि हमारे कंट्री के जितने भी लोगों को वो लोग किडनैप करके लेके गए हैं या जिनको उन्होंने बेसिकली यहाँ से लेकर के गए हमारी कंट्री से, हम उनको वापस लेकर के आएंगे। दोनों ही ऑब्जेक्टिव अभी तक इसराइल नहीं फुलफिल कर पाया और 9 महीने हो गए इस पर्टिकुलर वॉर को। ना तो हमास के मिलिटेंट्स ख़त्म हुए, ना तो आप अपने कंट्री के सारे आपने जो किडनैप करके लोग लेकर के गए थे उनको छुड़वा पाए। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इस वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट टू डिस्ट्रॉय द पैलेस्टीन एंड गाजा, या इसके पीछे की भी कुछ? दिस इज़ माई सिंपल क्वेश्चन। ऐसा मैं कोई असर्टिव स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि हाँ दिस इज इट, ऐसा ही है, नहीं, दिस इज जस्ट अ सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। Russian President Vladimir Putin said on Tuesday that there would be serious consequences if Western countries allowed Ukraine to use their weapons to strike targets in Russia as suggested by Kyiv. So basically क्या बोला है व्लादिमीर पुतिन ने? व्लादिमीर पुतिन ने बोला है, व्लादिमीर पुतिन has given this particular statement that if Western countries allowed Ukraine to use their weapons to strike targets in Russia as sought by Kyiv. Russian President Vladimir Putin said Tuesday that there would be serious consequences if Western countries allowed Ukraine to use their weapons to strike targets in Russia as sought by Kyiv. So basically रशिया ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर यूक्रेन ने जो वेस्ट ने वेपन दिए उनका यूज़ किया रशिया पे, तो बेसिकली क्या होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर उनके दिए गए वेपन्स को यूक्रेन ने यूज़ किया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ताइवान्स लेजिस्लेचर पासेस बिल फेवरिंग चाइना कर्टेलिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। सो बेसिकली ताइवान के लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया, उस बिल के बाद चाइना को थोड़ा और ज़्यादा, जो चाइना का जैसा आइडियोलॉजी है, जैसा चाइना ताइवान के लिए चाहता है, ये पर्टिकुलर जो बिल है ये उसी सेम लाइन पे है। और इसके बाद क्या होगा, इस पर्टिकुलर बिल के पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है उन्हें कर्टेल कर दिया जाएगा। कर्टेल करने का मतलब कम कर दिया जाएगा। ठीक है, ताइवान्स ऑपोजिशन कंट्रोल लेजिस्लेचर पास चेंजेस ऑन ट्यूसडे दैट आर सीन एज फेवरिंग चाइना and diminishing the power of the island's president, sparking protests by the thousands of people. The changes pushed by the opposition's Nationalist Party and its allies would give the legislature greater power to control budgets, including defense spending, that the party has blocked in the in what many see as a concession to China. So basically क्या हुआ है कि जितने भी important powers थी बेसिकली जो रहती थी उनको सारी पावर्स को क्या कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया प्रेसिडेंट की पावर्स को, और लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स आ गए हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स को कर्टेल कर लिया गया है। और बेसिकली इसे ये क्या माना जा रहा है, दिस इज बेसिकली जस्ट टू फेवर दी चाइना, जस्ट टू फेवर दी चाइना। नाउ मूविंग ऑन। अब यूके में जो ऋषि सुनाक ने जो इलेक्शंस अनाउंसमेंट किया टाइम के पहले 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाले, उसके लिए जो प्रिपरेशन चल रही है उस चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल था, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नाउ वी आर कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में अभी के लिए कुछ भी रेलेवेंट आज के लिए नहीं है, बट हाँ वंस द वर्ल्ड कप स्टार्ट, एक बार वंस द वर्ल्ड कप स्टार्ट, तो फिर हमारे लिए चीज़ें थोड़ा सा हमें क्रिकेट से देखने को मिलेंगे। फिर इस बार ओलंपिक्स भी है 2024 में, पेरिस ओलंपिक्स है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक स्पोर्टिंग इवेंट है। ठीक है, इसके अलावा आज के दिन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ अगर आपको कुछ लगता है तो देन डू पंच इन योर क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या आप लोगों को आज ध्यान रखना है, आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं थे जिन्हें मैं बहुत डीप और डिटेल में डिस्कस करना हो। ठीक है, तो आज का एनालिसिस वीडियो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, देन डू पंच इन योर क्वेश्चंस प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एनालिसिस।